درود پاک سے حضرات اللہم صلی علی سیدنا مولانا جس کو آتا وہ پڑھ لو. آپ اپنا کام کر کے بیٹھ جائیں. ہاں جی. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان اللہ. وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وفي مقام آخر إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بس بھی مولانا بیٹھ جائیں.
ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے اصحاب پیمبر سے محبت کی ہے۔ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتے، ٹوٹیں جو ستارے تو زمیں پر نہیں گرتے۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، صحافی حضرات، سرکاری اہلکاران، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 29 مارچ سن 2013 کو دوسری مرتبہ برادر محترم مجاہد جمعیت ہر دل عزیز شخصیت پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا قاری جمال عبد الناصر صاحب کی دعوت پر اس پارک میں ڈی جی خان شہر میں حاضری کا اتفاق نصیب ہو رہا ہے۔ دعا کریں کہ رب العالمین قاری صاحب کی محنت و کاوش اور ہم سب کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جو زندہ بیٹھے ہو وہ آمین کہہ دو، جن کو گھر سے ناشتہ صبح نہیں ملا وہ چپ بیٹھے رہو، کیونکہ ماشاءاللہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، دین کے جلسے میں آتے ہیں تو بڑے تھکے ٹوٹے پھوٹے آتے ہیں، یا پھر وی آئی پی بن کے آتے ہیں۔ جلسہ، کانفرنس، سیمینار جو ہوتا ہے وہ انسان کے اندر کے جذبے کا عکس ہوتا ہے۔ جتنا دین کا جذبہ ہوگا مدھم، اتنا آواز بھی نکلے گی مدھم، اور جتنا دین کی تڑپ اور وجد اور کیف و سرور ہوگا اتنا بلند آواز اور ذوق سے انسان کی آواز نکلتی ہے اور اللہ کے نام کی صدا نکلتی ہے۔ اس لیے وقت جمعے کا ہے، کوئی کھلا ٹائم نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی تقریر کر دوں۔ جمعے کا ایک لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے، محدود ٹائم ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ ٹائم آپ کو جگانے میں لگ جائے۔ جیسے قاری صاحب نے بھی آپ کو اشارتاً کہہ دیا کہ میرا ایک اپنا انداز گفتگو ہے، میں دل سے بولتا ہوں اور دل کے دریچوں میں اتارتا ہوں، لیکن بولتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کا جذبہ بھی جمع چھلک اور مچل رہا ہو۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے 2-4 باتیں دل کی کروں تو پھر 2 باتوں کا خیال رہے۔ ایک تو توجہ میری طرف، یہ نہ ہو کوئی آئے جائے آپ ادھر دیکھیں اور میری باتیں ہوا میں اڑ جائیں۔ ایک تو پوری توجہ رکھیں گے،
اور دوسرا جب بھی میرے دل کی کوئی بات تمہارے دل کو ٹچ کرے، مس کرے، دل کی بیل بجائے، تو پھر دل کے دریچے کھول کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ نہیں، یہ تو کینیڈا کے مجاور والی سبحان اللہ ہے، مجھے دیوبند کی مجاہد والی سناؤ۔ سنا ہوگا نا، پچھلے دن ایک ڈرامہ ہوا تھا کینیڈا کے مجاور کا، تو وہ تم مجاور نہ بنو، تم دیوبند کے مجاہد بنو، تاکہ علامہ اقبال کی بات سچی ہو جائے کہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو پھر ایک دفعہ گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو، آج جو مجھے عنوان دیا گیا، پچھلے برس آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پوری کائنات کے انبیاء کے سردار کا ذکر کیا تھا۔ جن کو توجہ ہے وہ کہیں سبحان اللہ۔ اور آج مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ساری کائنات کی امتوں اور نبی کے صحابہ کے سردار کا چرچا کروں۔ اس لیے یہ عنوان آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ کی توجہ پوری ہوگی تو میں انشاءاللہ اس دن میں بھی تمہیں رات کے تارے دکھاؤں گا۔ لیکن شرط وہی ہے، مزہ ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ تم چاہتے ہو کہ مقرر کا بیان ایسا ہو کہ ہمیں مزہ آ جائے، لیکن تمہاری توجہ سبحان اللہ ایسی ہو کہ ہمیں ڈبل تھکاوٹ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو، جیسا تم سننا چاہتے ہو ویسا ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہ فیڈ بیک ہے، صدائے گنبد ہے، جیسی کہو گے ویسی سنو گے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ ادھر نہیں دیکھنا، گیٹ سے لوگ آتے جاتے رہیں گے، مٹھائی لے کے کوئی نہیں آئے گا، سب خالی ہاتھ آ رہے ہیں، اور میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں گا۔ میرے دوستو، ایک رات، بڑی توجہ، میں تمہیں رات کے تاروں کی طرف لے جاؤں۔ ایک رات کا سناٹا تھا، رات کی ظلمت تھی، رات کا اندھیرا تھا، رات کی تنہائی تھی، رات کی خلوت تھی، رات کی یکتائی تھی، اور اللہ کے پیغمبر اپنے بستر پہ محو استراحت تھے، سکون میں، آرام میں، اطمینان میں، چین میں، راحت میں۔ طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں۔ سب کہہ دو رضی اللہ۔ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی طیبہ کائنات نے، بڑی توجہ چاہوں گا ڈی جی خان والوں، اپنے ذوق کے سمندر کی تمہیں تہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ سارے ذوق والے نہیں ہوں گے، لیکن 2 4 10 20 تو اہل دل، اہل نظر، اہل فکر اور اہل غور اور اہل علم بیٹھے ہوں گے۔ انشاءاللہ میری بات کو انجوائے کرو گے کہ میں اپنے ذوق عباسی کا رنگ بھرتا ہوں ہر گفتگو اور ہر موضوع میں۔ طیبہ کائنات کی اچانک آسمان کی طرف نظر اٹھی اور دیکھا کہ آسمان پہ ستارے چمک اور دمک رہے ہیں۔ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں، آسمان پر ستارے مسکرا رہے ہیں، آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں۔ ان ستاروں کی مسکراہٹ، جھل ملاہٹ، جگمگاہٹ کو دیکھ کر طیبہ کائنات، طاہرہ کائنات، عفیفہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ جو ستارے چمک اور دمک رہے ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ یہ کتنے ہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فی البدی کہا، سوچا سمجھا نہیں، کیلکولیٹ نہیں کیا، گہرائی میں نہیں اترے۔ قائم الدین عباسی کا بیٹا ہوں، توحید کی جھلک دیتا گزروں گا کہ اللہ کے پیغمبر نے فی البدی جواب دیا، عائشہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، بڑی توجہ چاہوں گا، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا عائشہ میں عالم الغیب ہوں ابھی بتاتا ہوں یہ ستارے کتنے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ انا لا ادری واللہ عالم، میں نہیں جانتا، میرا رب جانتا ہے کہ ان ستاروں کی تعداد کیا ہے۔ اب جب طیبہ کائنات کو
اپنے سوال کا جواب مل گیا، بڑی توجہ، طیبہ کائنات کو جب اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، اور ان کی تعداد کا اللہ کے بغیر کسی کو پتہ نہیں ہے، تو طیبہ کائنات نے فوراً ایک اور سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی مجھے یہ تو بتائیں کہ جس طرح یہ ستارے لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، اللہ کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کے صحابہ میں، آپ کے اصحاب میں، آپ کی آل میں، آپ کی امت میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے جانثاروں میں، آپ کے حب داروں میں، آپ کے غم خاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے، توجہ رہے، تو اللہ کے پیغمبر نے پھر بھی فی البدی جواب دیا، کوئی سوچ سمجھ کے نہیں، کیلکولیٹ کر کے نہیں، اندازہ کر کے نہیں، فی البدی پیغمبر کے زبان مقدس سے ایک جملہ نکلا، ہاں عائشہ، میرے یاروں میں، میرے پیروکاروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے جان نثاروں میں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب جب اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا، توجہ رہے میری طرف، جب اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ ہاں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی، توجہ نہیں ہے، آسمان کے ستاروں سے بھی، سارے بولو، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب جب اللہ کے پیغمبر نے جناب عمر بن خطاب کا نام لیا کہ ہاں عائشہ، میرے یاروں میں، میرے وفاداروں میں، میرے پیروکاروں میں عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی، مہر بلب ہو گئی، سکوت و سناٹا چھا گیا۔ تو پیغمبر تو چہرہ شناس تھے، حضور نے فوراً کہا، عائشہ خیریت، تو خاموش کیوں ہو گئی؟ تو نے سوال و جواب کا سلسلہ آگے کیوں نہیں بڑھایا؟ تو نے مجھ سے کوئی اور بات کیوں نہیں گئی؟ تیرے چہرے پہ خاموشی کیوں چھا گئی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے پیغمبر، آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا، عائشہ وہ کون سی؟ طیبہ کائنات نے کہا، اللہ کے نبی، میں آج تک یہ سمجھتی تھی کہ شاید میرے آپ کی ساری امت میں، آپ کے یاروں میں، آپ کے وفاداروں میں، آپ کے اصحاب و آل میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں، اطاعت میں، ریاضت میں، بندگی میں، جستجو میں، حمد و ثنا میں، تمجید و تقدیس و تعریف و تعمید و تسبیح و تعلیل و تسبیح میں سب سے آگے میرا باپ ابو بکر ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا بلکہ عمر بن خطاب کا نام لیا۔ تو میں آج سمجھ گئی میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ اب جب طیبہ کائنات نے یہ تصور پیش کیا کہ آج میں سمجھی کہ میرا باپ ابو بکر عمر سے پیچھے رہ گیا اور عمر ابو بکر کو کراس کر گیا، تو پیغمبر کا جواب سن، تیرا ایمان بھی تازہ ہو، تجھے صدیق کا اندازہ ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً کہا، عائشہ، ڈی جی خان والوں ایک جملہ دینے چلا ہوں، بڑی توجہ سے دل کے کمپیوٹر میں سیو کر لینا، اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، عائشہ، عائشہ، تو نے یہ پوچھا ہے، بڑی توجہ، تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ عائشہ، تو نے یہ پوچھا کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی تو زبان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، اعلان محمد سے سن کہ عمر کی ساری زندگی ایک طرف تیرے باپ ابو بکر کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عظمت سیدنا صدیق اکبر، توجہ ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا، عائشہ، عائشہ، تم نے یہ پوچھا ہے، تم نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ اگر تو یہ پوچھتی تو پھر سن کہ عمر کی ساری عمر ایک طرف،
तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला, सारे बोलो, मुकाबला नहीं कर सकती। आओ आओ अब मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम्हें उस रात के भी तारे दिखाऊं। उस रात में क्या ऐसा है कि एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। चंद आहले दिल से कहूंगा कि कभी गोता लगा के तो देखो, इसकी डीप में, गहराई में, उमक में जाके तो देखो कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, उमर की सारी उम्र एक तरफ। कौन उमर? जिसको मांगने के लिए पैगंबर दामन फैला के रो रहा है। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर खुल जाए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो फरिश्ते भी नारे लगाए। कौन उमर? जो आर्डर करे तो दरिया बहने लग जाए। कौन उमर? जो जंगल के दरिंदों को हुक्म करे तो जंगल के दरिंदे जंगल खाली करते नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले तो कुरान बनता नजर आए। कौन उमर? जो आयशा की सफाई दे तो सूरह नूर उतरती नजर आए। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद है, अगर खुला होता तेरे सर पे भी नबुव्वत का ताज होता। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जहां से तू गुजरेगा शैतान कभी नहीं गुजरेगा। कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर कि अगर किसी का बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे तो बाप रोता है। उमर जब तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? जो मशवरा दे शरीयत बन जाए। कौन उमर? जो नफल का इरादा करे हज का हिस्सा बन जाए। कौन उमर? जिसकी अदाएं देखकर पूरा कुफ्र हैरान और परेशान हो जाए। उस उमर के लिए पैगंबर ने कह दिया कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, अबू बकर की एक रात का मुकाबला नहीं। आओ उस रात की तरफ तुम्हें ले चलता हूं कि वो एक रात इतना कीमती क्यों बन गई कि एक रात उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। हुजूर अपने घर में सोए हैं, आराम व इत्मीनान में हैं। शेर खुदा, शौहर ज़हरा, गौहर ज़हरा, अबुल हसन वल हुसैन, जन्नत के शहजादों के बाप, इमामुल औलिया, खलीफा राशिद, खलीफा राबे, जनाब अलीउल मुर्तज़ा, सब कह दो रज़ी अल्लाह। हुजूर के साथ सोए हुए हैं दूसरे बिस्तर पर। आधी रात का वक़्त है। अचानक शेर खुदा के कानों में शोर की आवाज आई। शोर की आवाज आई। शेर खुदा उठे और जाकर पैगंबर को जगाया। हुजूर खैरियत नहीं। हुजूर जागे और जाग के पूछा, अली क्या हुआ? अली और मुर्तजा ने कहा, अल्लाह के नबी खैरियत नहीं, बाहर काफिर नंगी तलवारें लेकर आए खड़े हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है। तो हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, अली घबराने की जरूरत नहीं, मारने वाले अभी आए हैं, बचाने वाला पहले खड़ा है। अब अली शेर खुदा ने पूछा, हुजूर क्या होगा? हुजूर क्या होगा? तो हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, अली कुछ नहीं होगा, अली कुछ नहीं होगा। हुजूर ने अली उल मुर्तज़ा को बुलाया। अब तवज्जो करना, एक जुमला और यहां पे देता चलूं आपकी अदम तवज्जो के बावजूद, क्योंकि आप तो गेटों पे देख रहे हैं ना कि मिठाई लेके कौन आ रहा है। हाँ, और मैं बदज़ौक मजमे से बोल ही नहीं सकता। मेरा दिल बोलता उस वक्त है जब सामने दिल सुन रहे हो। मैं लकड़ियों से नहीं बोला करता। और काश मौलाना एक तरफ से रास्ता बनाते आने का, कोई इधर से आता है, कोई उधर से आता है, लोग देखते हैं मिठाई है, चावल है, क्या है। अब एक जुमला कहने चला हूं कि जब शेर खुदा ने परेशानी देखी तो हुजूर को आके जगाया। चंद लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ेगी। हुजूर को आके जगाया और आके कहा, हुजूर खैरियत नहीं है। ये रखो जाओ। हुजूर खैरियत नहीं है, परेशानी है। हुजूर ने पूछा, क्या हुआ? अली क्या हुआ? अली शेर खुदा ने कहा, हुजूर बाहर लोग आपको मारने आए हैं। तो हुजूर ने एक जुमला कहकर चुप करा दिया,
अली परेशान होने की जरूरत नहीं है, मारने वाले अभी आए, बचाने वाला तो पहले से खड़ा है। यहां पे मैं एक जुमला कहता हूं, जरा आओ अपने अंदर सिद्दीक और अली का फर्क मुआवजा करना और आपस में मुआवजा करके अपने दिल में इंसाफ करना कि एक ने जब खतरा देखा, परेशानी देखी, कुफर को देखा तो आके फौरन पैगंबर को जगाया, लेकिन अबू बकर ने जब खतरा देखा तो नबी को जगाया नहीं बल्कि लोरियां दे के झोली में सुलाया। खतरा वहां भी था, खतरा वहां भी था, वहां जगाया गया, यहां सुलाया गया। फर्क खुद मुलाहिजा करना। हाँ, अब हुजूर ने अली और मुर्तज़ा को बुलाया और बुला के कहा, अली ये लोगों की अमानतें हैं, ये अपने पास रखो, मैं अभी फलां जगह जाऊंगा, पूरी तवज्जो रखना, मैं अभी फलां जगह जाऊंगा और फलां जगह से फिर फलां जगह जाऊंगा और फलां जगह से फिर फलां जगह जाऊंगा। पूरा शेड्यूल, पूरा रूट हुजूर ने अली और मुर्तज़ा को बताया कि मैं अभी कहां जाऊंगा, वहां से कहां और वहां से कहां जाऊंगा। अली तू भी ये लोगों की अमानतें पड़ी हैं, ये अमानतें तकसीम करके तू भी हमारे पीछे फलां जगह पे आ जाना। अब ये जुमला बताता है कि तू भी फलां जगह पे आ जाना, मतलब क्या निकला कि हुजूर ने अली और मुर्तज़ा को अपना सारा प्रोग्राम बतला दिया था, कोई चीज छुपाई नहीं थी। क्यों कि अल्लाह के नबी को अली शेर खुदा पे पक्का एतमाद था, यकीन था, यकीन मोहकम, यकीन मुकम्मल था। हुजूर ने पूरा अपना सफर का शेड्यूल और रूट अली को बताया और मट्टी उठाई, मट्टी उठाकर कुफर के चेहरे में फेंकी। अल्लाह ने उस मट्टी को ऐसा फैलाया कि कुफर अंधा हो गया। 1400 साल गुजर गए, आज तक भी काफिर के सर में मट्टी है, आज तक कुफर के सर में मट्टी है। और कुफर अंधा हुआ, हुजूर अंदर से गुजर गए, हुजूर अंदर से गुजर गए। अब हुजूर चले गए, हुजूर चले गए। थोड़ी देर के बाद अबू जहल एंड कंपनी दीवार फलांग कर अंदर आए कि बाहर तो नहीं आ रहे, हम अंदर जाके नौज़-बिल्लाह हुजूर को शहीद कर दे। जब अंदर गए तो फिर एक जुमला देने चला हूं, जब अंदर गए तो चारपाई पे देखा कोई सोया हुआ है। अबू जहल ने अपने दिल में समझा कि शायद ये नबी है, शायद ये नबी है, और जाके करीब खड़े होकर कहा, कुम या मोहम्मद, उठो मोहम्मद। लेकिन जब चेहरे से कपड़ा हटा के वो उठे तो अबू जहल के पांव से जमीन निकल गई। देखा वो नबी नहीं, वो तो अली है, वो तो, सारे बोलो, वो तो अली है। तो मैं क्यों ना कहूं कि ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि जिसने सबसे पहले अली को नबी समझा वो अबू जहल था। आज भी अगर कोई अली को नबी या नबी के बराबर समझेगा वो अबू जहल की औलाद हो सकता है, नबी का उम्मती नहीं हो सकता। इसलिए अली उठे, अबू जहल हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान अगोश बदंदान अर्क में गर्क हो गया, पसीने में लथपथ शराबूर हो गया, पांव से जमीन निकल गई। और अबू जहल ने तिल मिला के पूछा, अली नबी कहां गए, नबी कहां गए? अब अली और मुर्तज़ा ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं, तवज्जो है, ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं। अगर ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं तो झूठ बनता है। अली जान दे सकता है लेकिन झूठ तकिया नहीं कर सकता। अली को सारा शेड्यूल रूट हुजूर बता के गए थे, लेकिन अली ने यह नहीं कहा कि मुझे पता नहीं। अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा चले गए। क्या कहा? सारे बोलो, चले गए। अबू जहल ने फिर पूछा, कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। क्या कहा? अबू जहल ने पूछा, अली नबी कहां गए? अली ने कहा चले गए। अबू जहल ने पूछा कहां चले गए? अली ने कहा जहां जाना था। अबू जहल ने फिर पूछा कहां जाना था? अली ने कहा जहां चले गए। 1 मिनट में अबू जहल को उल्लू का पट्टा बना दिया, नबूवत का राज भी नहीं दिया, झूठ भी नहीं बोला। हाँ, तो
तो अबू जाहल ने कहा, अबू जाहल ने फिर तिल मिला के अपने फौजियों से, अपने यारों से, अपने वर्करों से, रजाकारों से कहा कि ये नहीं बताएगा, ये जान दे देगा लेकिन नबूवत का राज नहीं देगा। तो अली अल मुर्तजा से जब पूछने में नाकाम रहा तो अबू जाहल ने अपने यारों से कहा, आओ मैं बताता हूं, मेरा दिल समझ गया है कि मोहम्मद कहां होगा। सारे कोने में खड़े हो गए और अबू जाहल से कहते हैं, अबू जाहल जल्दी बता कि मोहम्मद कहां है ताकि उसका पीछा करें। तो अबू जाहल की जबान की बात सुन, तुझे अज़मत सिद्दीक का अंदाजा हो। अबू जाहल ने कहा, मक्के वालों, मेरा दिल गवाही देता है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। आज की रात अगर मोहम्मद गया होगा तो अबू बकर के दरवाजे पे गया होगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूं, अगला जुमला भी अमीर अजीमत की जबान में, फारूकी आजम और इसार इजहार की जबान में, मैं क्यों ना कहूं अगला जुमला कि ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया। नारे तकबीर। ये फैसला भी 1400 साल पहले हो गया कि अबू जाहल भी, बड़ी तवज्जो मेरे इस जुमले पर, अबू जाहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। अबू जाहल भी अबू बकर को नबी का सच्चा यार मानता था। तो मैं क्यों ना कहूं, जो अबू बकर को नबी का सच्चा यार ना माने वो तो अबू जाहल से भी बड़ा काफिर हुआ ना। ऐसे है या नहीं है? अबू जाहल इकरार कर रहा है कि मक्के की धरती पर अबू बकर से बड़ा यार मोहम्मद का कोई नहीं। और यकीनन हुजूर भी दरे सिद्दीक पे गए थे। अबू जाहल का अंदाजा भी सच निकला। हाँ, हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे, तवज्जो मेरी तरफ, हुजूर, मौलाना बैठ जाए, हुजूर दरे सिद्दीक पे पहुंचे और जाके दस्तक दी। अबू बकर बाहर आए, बाहर आकर सामने देखा, 14वीं के चांद से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा नजर आया। अबू बकर देखकर हैरान भी हुए, परेशान भी हुए, आंखों से आंसू के कतरे छलक पड़े। अबू बकर ने रोकर कहा, हाथ बांध के कहा, फिदा काबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान हूँ, ये क्या माजरा है? आधी रात को आप मेरे दरवाजे पर, अगर कोई काम था, बात थी, जरूरत थी, मकसद था, कोई मेरे लायक हुक्म या खिदमत थी, हुजूर कोई एलची, नुमाइंदा, कासिद, नौकर भेजकर मुझे तलब कर लिया होता। आप आधी रात को मेरे दरवाजे पे चलकर क्यों आए? मुझे बुलाते, मैं सर के बल आता। तो अल्लाह के पैगंबर का जवाब सुन, तेरा ईमान दावा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, अबू बकर तुझे पता नहीं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, मैं अपना पाबंद, अपनी मर्जी का पाबंद नहीं, मैं तो किसी और का पाबंद हूं। जैसे वो कहता जाता है वैसे मैं करता जाता हूं। अबू बकर जैसे वो कहता जाता है वैसे मैं करता जाता हूं। मेरी अपनी मर्जी नहीं है, मैं तो उसकी मर्जी से सोता हूँ, उसकी मर्जी से उठता हूँ, उसकी मर्जी से खाता हूँ, उसकी मर्जी से पीता हूँ, उसकी मर्जी से चलता हूँ, उसकी मर्जी से रुकता हूँ, उसकी मर्जी से निकाह करता हूँ, उसकी मर्जी से मैं कोई बात करता हूँ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, जब तक मुझे रब का आर्डर नहीं होता मैं कोई काम करता ही नहीं। और मैं क्या करता हूँ कि अल्लाह ने अपने नबी को दरे सिद्दीक पे क्यों भेजा? अल्लाह के नबी पहले भी तो बुलवा सकते थे ना, अल्लाह वही करके बता सकते थे कि हुजूर आज की रात आपका दुश्मन आएगा, आप अबू बकर को अपनी तरफ बुलवा लें और उसके साथ आप जल्दी कहीं चले जाएं। लेकिन अल्लाह की भी हिकमत थी, क्यों कि जब किसी छोटे के दरवाजे पर कोई बड़ा आदमी चला जाए तो फिर उस छोटे की इज्जत बढ़ जाती है। बढ़ती है या नहीं बढ़ती? तेरे और मेरे दरवाजे पर कोई एमपी है, एमएनए, वजीर, मुशीर, गवर्नर, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हाँ कोई बड़ा आदमी आए तो किसी को पता ना भी हो तो हम खामखा होटल पे चाय पीने भी चले जाते हैं और 10 आदमियों को बताते हैं फला आदमी मेरे पास आया था या फला आदमी मेरे पास आ रहा है। यानी एक तफाखुर होता है, एक खुशी होती है, क्यों कि लोगों को पता चलेगा इसके ताल्लुकात बड़े वसी है, फला बड़ा आदमी इसके दरवाजे पर आया है। तो अल्लाह के रब्बे कायनात ने दरे सिद्दीक पर इसलिए हुजूर को भेजा कि अबू बकर मैंने तेरा शान भी दुनिया में ऊंचा करना है और ऊंचा इतना करूंगा कि तेरे दर पे उसको भेजूंगा जिससे बड़ा कायनात में है ही कोई नहीं। अब अबू बकर ने पूछा, हुजूर हुजूर हुक्म, कैसे आना हुआ? तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चलना है। क्या कहा? क्या कहा? अबू बकर चलना है। जाओ तारीख की सारी किताबें उलट पुलट के देखो, वरक उलट के देखो, झरोकों में झांक के देखो। जब हुजूर ने कहा ना अबू बकर चलना है
तो अबू बकर ने ये नहीं पूछा आका कहाँ चलना है, क्यों चलना है, कब चलना है, आधी रात को क्यों चलना है, बूढ़ा माँ बाप है किसके सहारे छोड़ूं, बीवी बच्चों को किसके सहारे छोड़ूं, अकेला घर है किसके सहारे छोड़ूं। अबू बकर ने एक जुमला भी जबान से नहीं निकाला। हुजूर ने कहा चलना है, अबू बकर चल पड़ा। मैं तुम्हें कीमत बता रहा था कि एक रात उमर की सारी उम्र को कैसे क्रॉस कर गई। अब हुजूर ने कहा अबू बकर चलना है, अबू बकर चल पड़े। चलते 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 थोड़ी देर के बाद अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर जरा तेज चलो, दुश्मन पीछे है, हमने गार तक पहुंचना है। अबू बकर तेज चले, पैगंबर भी तेज चले, आगे हुजूर पीछे अबू बकर है। थोड़ी देर गुजरी, अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट रोक के मेरी बात तो सुने। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अबू बकर अभी तो मैंने तुझे कहा जल्दी चलो और अब तू कहता है रोक के तेरी बात सुनूं। चलता भी रहे, बात करता भी रहे, मैं चलते चलते तेरी बात सुन लूंगा। तो अबू बकर ने कहा अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए रुक जाए, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। हुजूर रुके और रुक के पूछा अबू बकर ऐसी क्या बात हो गई कि तेरी जान निकलने लग गई, ऐसा क्या हो गया कि तेरी जान निकलने लग गई। तो अबू बकर ने रोकर कहा अल्लाह के नबी आपके कदमों के निशानों पर मुझे लहू के कतरे नजर आ रहे हैं और ये लहू के कतरे मेरे जिस्म के लहू को निकाल रहे हैं। मेरा दिल डूबता जा रहा है कि आपके पांव से खून भी है और आप पैदल चल रहे हैं। अल्लाह के नबी ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। हुजूर ने फिर मुस्कुराकर कहा अबू बकर ये भी कोई इतनी बात है जिस पे तेरी जान निकलने लग गई। तो अबू बकर ने कहा होगा हुजूर आपको क्या पता, आपको कांटा भी चुभे तो मेरी जान निकल जाती है। हुजूर ने फरमाया अबू बकर कोई पत्थर चुभा होगा, कोई कांटा चुभा होगा तो मेरे पांव से खून निकल पड़ा। मक्के की पथरीली जमीन है, फिक्र न कर चल। अबू बकर ने कहा आका ये हो ही नहीं सकता कि मैं भी साथ हूं और आपके पांव से लहू के कतरे निकले और मैं आपको पैदल चलने दूं। हुजूर ने कहा अबू बकर अगर पैदल न चलूं तो आधी रात को सवारी कहां से लाओगे, क्या करूं, सफर तो करना है। अबू बकर बैठे और बैठकर कहा अल्लाह के नबी अगर सवारी नहीं तो क्या हुआ, आज अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बनेंगे। अब अबू बकर बैठे और बैठकर हुजूर को कंधों पे उठाया, तवज्जो रखना, हुजूर को कंधों पे उठाया और उठा के चल पड़े। कह दो कह दो कह दो ताकि मैं अगला जुमला कहूं। उठा के चल पड़े। मैं एक और जुमला कहा करता हूं, चल नहीं पड़े, दौड़ पड़े। स्टेज वालों के लिए एक और जुमला कहता हूं, दौड़े नहीं उड़ पड़े। क्योंकि स्टेज वालों से दाद लेना बड़ा मुश्किल होता है, नक्काद होते हैं, मद्दाह कम होते हैं। तवज्जो है, चले नहीं दौड़ पड़े, दौड़े नहीं उड़ पड़े। क्यों कि मैंने तो तारीख के झरोकों में झांक के देखा है जिस पे नबी ने सवारी की वो चली नहीं, वो उड़ी है। चाहे वो हलीमा की ऊंटनी थी, चाहे वो जन्नत की बुराक थी, चाहे वो अबू बकर के कंधे थे, जहां जहां पर नबुव्वत के कदम आए अल्लाह ने उसको ऐसा बर्क रफ्तार बनाया कि बिजली भी उसका मुकाबला न कर सकी। और मैं इस जुमले की गहराई में बस 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 आपके नारे नहीं चाहिए मुझे, अब कब्रिस्तान ठीक है, आपके लिए एक और जुमला कहता हूं। तवज्जो, आपके लिए एक और जुमला कहता हूं। क्यों मैंने कहा उड़ पड़े, मैं इस जुमले की भी आपको गहराई में ले चलूं अपने ज़ौक़ में। आप बहुत सारे लोग माशाल्लाह हज उम्रे पे गए होंगे और डीजी खान तो भरा पड़ा है ना, वहां है या नहीं, गए हो? अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह बार बार ले जाए। जो जितना जोर से आमीन कहेगा अल्लाह उतना जल्दी ले जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे भी ले गया। मैं तादीस नेमत के लिए कहता हूँ, तफाखुर के लिए नहीं, और अपने मसलक के हक होने के लिए कहा करता हूँ। हाँ कि मेरी जिंदगी के इतने साल नहीं है जितनी दफा अल्लाह मुझे मक्के और मदीने ले गया। अल्लाह ने इस छोटी सी उम्र में मुझे 15 हज कराए और पिछले महीने जनवरी में 43वां उम्रा करके आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी गए, मैं भी जाता हूँ, लेकिन आपको सिर्फ सैंपल के लिए मैं बता रहा था कि आप जब वहाँ जाते होंगे तो आपने जाके गारे सौर का मंजर देखा होगा। हाँ, और जब गार पे लोग जाते हैं ना ज़ियारत के लिए, तो वहाँ जाते हैं तो नीचे खड़े होकर जब ऊपर देखते हैं ना, वो वहाँ पे है। बहुत सारे लोग तो उसी वक्त ही रिटायर हो जाते हैं कि नहीं यार हम नहीं जा सकते वहाँ तक।
बहुत मसला है। हालांकि अब तो रास्ते भी बने हुए हैं, नीचे बकाला भी बना हुआ है, आपको मिनरल वाटर भी मिलता है, जूसेस भी मिलते हैं, फ्रूट भी मिलते हैं, खजूर भी मिलती है, खाने पीने की चीजें भी मिलती हैं। लोग उठते बैठते जाते हैं, रेस्ट करते जाते हैं, जूस पीते जाते हैं, पानी पीते जाते हैं, सांस लेते जाते हैं, गप्पे लगाते जाते हैं। फिर भी आधे जाते हैं, आधे नीचे खड़े होकर देख के वापस आ जाते हैं। अबू बकर, मैं तेरी अदा पे, हया पे, वफा पे करोड़ों जाने कुर्बान कर दूं, न तूने पानी पिया, न जूस पिया, न फ्रूट खाए, न रेस्ट किया, न सांस लिया। अकेला भी नहीं, नबी को कंधे पे उठाकर एक सांस में गार के दरवाजे तक पहुंचा। नारे तकबीर, शान सिद्दीक अकबर। और फिर मैं क्यों ना कहूं कि सिद्दीक चला नहीं, सिद्दीक उड़ा। वगरना किसी की ताकत है कि नबूवत का बोझ उठाकर, तेरा स्पीकर मजा नहीं दे रहा काफी देर से, नबूवत का बोझ उठाकर, नहीं थोड़ी करो, मुझे ज्यादा नहीं, मैं नात खा नहीं हूं, मुझे साफ सिंपल सुस्ता आवाज चाहिए। तवज्जो है कि कंधे पे उठाकर, यहाँ इस मौके पर मुझे खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल कासमी का एक जुमला याद आ रहा है। कहो तो तुम्हारी नजर कर दूं। हाँ, हजरत तौसवी की याद दिला रहे थे कारी जमाल अब्दुल नासिर साहब, वाक़ियतन जो यादगार असलाफ थे, पैकर इखलास थे, जिनकी निस सदी से ज्यादा दीन, मजहब और अजमत सहाबा के लिए खिदमत है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए और अल्लाह उनके बेटों को उनका सही जानशीन बनाए और हम सबको भी उनका तामुन करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ, खतीब पाकिस्तान मौलाना ज़ियाउल कासमी कहा करते थे कि चूड़ा मलंग कहता है कि अबू बकर खिलाफत ले गया, अबू बकर खिलाफत ले गया। तो मौलाना कासमी कहा करते थे चूड़ा जरा आंखें खोल के देख तो सही, हिजरत की रात अबू बकर कंधे पे उठा के नबूवत ले गया। तो खिलाफत को पीटता है, उसके कंधों पे नबूवत नजर आती है। अब अबू बकर चले, दौड़े, उड़े और एक सांस में गारे सौर के दहाने तक पहुंचे। जब पहुंचे, अगला जुमला तुम्हारी नजर करना चाहता हूं। अब जब गार के दहाने पे पहुंचे और हुजूर को कंधों से उतारा तो हक बनता था कि अबू बकर कहते, हुजूर 3 मील लंबी चढ़ाई थी, वो भी पहाड़ी थी, ऑक्सीजन भी कम था, नीचे पत्थर और रोड़े थे, ऊपर नबुव्वत का बोझ था, मैं चलने वाला कमज़ोर बूढ़ा ज़ईफ़ था, नहीफ था, कमज़ोर था। अल्लाह के नबी, इजाज़त हो तो मैं 2 मिनट सांस ले लूँ, इजाज़त हो 2 मिनट कमर सीधी कर लूँ, इजाज़त हो 2 मिनट पानी पी लूँ, इजाज़त हो 2 मिनट आराम कर लूँ। अबू बकर, मैं तेरी वफ़ाओं पे दुनिया की सारी वफ़ाएं कुर्बान कर दूँ। अबू बकर ने हुजूर को कंधों से उतार कर ये नहीं कहा हुजूर मैं थक गया हूँ, इजाज़त हो तो आराम कर लूँ। अबू बकर ने कहा आका आप थक गए होंगे, मैं अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम कर लें। इसको वफा कहते हैं, इसको वफा कहते हैं और इसे वफा की अदा कहते हैं और इसे वफा की इंतहा कहते हैं। हाँ, अब हुजूर ने फिर मुस्कुराकर कहा अबू बकर बिस्तर तो लेकर नहीं आए थे, बिस्तर कहां से लाओगे? तुम जो कह रहे हो हुजूर मैं आपके लिए अंदर जाके बिस्तर बनाता हूं, आप आके आराम करें। अबू बकर बिस्तर तो नहीं लाए थे, बिस्तर कहां से लाओगे? तो अबू बकर ने भी ज़बान हाल से कहा होगा हुजूर सवारी नहीं थी तो अबू बकर के कंधे मोहम्मद की सवारी बन गए। अगर बिस्तर नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की झोली मोहम्मद का बिस्तर बनेगी। हुजूर ने कहा वक्त कम है, इख्तिसार कर रहा हूं। हुजूर ने कहा चलो अंदर चलें, चलो अंदर चलें। अबू बकर ने कहा नहीं आका आप अंदर नहीं जाएंगे, पहले मैं अंदर जाऊंगा, आप बाद में आएंगे। हुजूर ने कहा क्यों अबू बकर, दुश्मन पीछे है, इकट्ठे चलते हैं। अबू बकर ने कहा हुजूर दुश्मन पीछे है तो दुश्मन आगे भी है, काश कोई अहले दिल बैठा होता। सारे चावले वाले हो। हाँ हुजूर अगर दुश्मन पीछे है तो दुश्मन आगे भी है, पहले अंदर मैं जाऊंगा, अंदर जाके मैं गार की सफाई करूंगा ताकि अगर कोई काला नीला पीला सावा बैठा हो तो मुझे डसे आप तक ना पहुंचे। अब हुजूर ने फिर पूछा होगा, तसव्वुर खताबत में कहता हूं अबू बकर तुम जो कहते हो अंदर जाऊंगा, झाड़ू दूंगा, सफाई करूंगा, फिर आपको बुलाऊंगा, झाड़ू तो हम लेके नहीं आए थे, झाड़ू कहां से लाओगे? तो अबू बकर ने फिर मुस्करा के कहा होगा अल्लाह के नबी सवारी नहीं थी तो कंधे सवारी बन गए, बिस्तर नहीं है तो झोली बिस्तर बनेगी, झाड़ू नहीं है तो क्या हुआ, आज अबू बकर की पगड़ी मोहम्मद का झाड़ू बन जाएगा। अबू बकर ने अपने सर की पगड़ी उतारी
और झाड़ू बनाकर गांव की सफाई की, गंद कूड़ा क्रिकेट बाहर फेंका। अबू बकर ने देखा जगह जगह गए सुराख नजर आए। अबू बकर ने अपनी पगड़ी के टुकड़े किए, सुराख बंद कर दिए, फिर भी कुछ सुराख बच गए। अबू बकर ने कंधे की चादर उठाई, उसके टुकड़े किए, सुराख फिर भी बच गए। बाद रिवायात के मुताबिक अबू बकर ने अपने कमीज के भी टुकड़े किए और सुराख बंद कर दिए, एक सुराख फिर भी बच गया। अबू बकर ने उस सुराख पर अपने पांव की एड़ी रखी, झोली फैलाई, बिस्तर बनाया, पैगंबर को बुलाया। अब मैं यहां पे भी एक जुमला अपनी तरफ से ऐड करता हूं कि अल्लाह मैं तेरी हिकमत पे भी कुर्बान जाऊं, अल्लाह मैं तेरी कुदरत पे भी कुर्बान जाऊं। जिस सुराख में, बड़ी तवज्जो, बगैर मिठाई के आ रहा है मौली साहब, बड़ी तवज्जो, हाँ अल्लाह मैं तेरी हिकमत और कुदरत पे, इधर से किसी को गुजरने ही ना दो यार, एक रास्ता रखो। अल्लाह मैं तेरी हिकमत और तेरी कुदरत पे कुर्बान जाऊं कि जिस सुराख में काला बैठा था, जिस सुराख में मुश्की बैठा था, जिस सुराख में सांप बैठा था, उस सुराख पे अल्लाह ने कपड़ा नहीं आने दिया। कभी गहराई में जाके सोचा करो। हालांकि आ सकता था ना, जब अबू बकर कपड़ों से सुराख बंद कर रहे थे तो जहां काला सांप बैठा था, दिल का काला, शक्ल का काला, अकल का काला, अकीदे का काला, कपड़ों का काला, जबान का काला, दिमाग का काला, अकीदे का काला, यहां भी काला, वहां भी काला, जो बैठा था उस सुराख पर अल्लाह ने कपड़ा नहीं आने दिया। हालांकि कपड़ा आ सकता था वहां पे और सुराख पे पांव रखवा देता अल्लाह, अबू बकर की एड़ी भी बच जाती, डसे भी ना जाते, हाँ, और कपड़े से सांप का रास्ता भी रुक जाता। अल्लाह की कुदरत और हिकमत पे हैरान हूं। अल्लाह ने भी क्या फैसला किया कि इस काले को कपड़े से नहीं रोकूंगा, इस काले को अबू बकर के पांव की ठोकर से रोकूंगा, ताकि सारी जिंदगी पता चले कि काला अबू बकर का भी दुश्मन है, अबू बकर के पैगंबर का भी दुश्मन है। अब हुजूर आए, अबू बकर की झोली में सर रखा, बिस्तर सदाकत में सर रखा। बड़ी तवज्जो, अमीर शरीयत का एक जुमला देने चला हूं। अबू बकर की झोली में सर मुबारक रखा और सो गए। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे कि मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। मंजर ऐसे था जैसे रहल में कुरान होता है। जैसे रहल में कुरान रख के तुम देखते हो, मजे लूटते हो, वैसे अबू बकर ने अपने पैगंबर का चेहरा अपनी झोली की रहल में रख के उसने भी मजे लूटे। अब हुजूर सो गए, हुजूर सो गए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, पूरी तकरीर का खुलासा देने चला हूं चंद मिनटों में, बल्कि 5 मिनटों में, टाइम काफी हो गया। हुजूर सो गए। अब जरा मंजर देखना, झोली सदाकत की है, झोली, सारे बोलो, धूप वाले भी बोल पड़ो, झोली सदाकत की है और सर नबूवत का है। झोली सदाकत की है और सर नबूवत का है। ईमान से बताओ, दरमियान में कोई फासला था? कोई फासला था? डायरेक्ट झोली सदाकत की, सर नबूवत का। तो मैं क्यों ना कहूं नक्शा बन गया बिला फसल, बिला फसल, नक्शा बन गया बिला फसल। अब जब बिला फसल का नक्शा बनाना, झोली सदाकत की, सर नबूवत का, बिला फसल हो गए, तो अब काले को तकलीफ शुरू हो गई कि कयामत तक झगड़ा तो यही बिला फसल का रहना है। और अबू बकर बिला फसल हो गया, मैं जाऊं इसको डसूं और अबू बकर को और नबी को जुदा कर दूं। काला आया, आके डसने लगा, अबू बकर हंसने लगा, वो डसता रहा, वो हंसता रहा, वो थक के भाग गया। अबू बकर आज तक साथ है। और बज़बान शायर अबू बकर ने कहा होगा उस काले को मुखातब होकर कि सो मेरे गनी न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, सो मेरे गनी न भूल तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जुल्म जबर बला सही मेरा हौसला भी कमाल है। उसने डसने की इंतहा की, इसने सहने की इंतहा कर दी। और फिर काला भागा, अबू बकर बैठा रहा, अबू बकर बैठा रहा। अब यहां पर आज का काला कहता है कि अबू बकर गार में रोया था, अबू बकर गार में रोया था। और मैं कहा करता हूं कि अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था, न रोने आया था। कह दो, अबू बकर न रोया था, न रोने वाला था,
न रोने आया था। फिर सवाल उठता है, अगर रोया नहीं तो फिर क्यों आंखों से आंसू क्यों? मैं कहा करता हूं, किसने कहा कि आंखों से आंसू थे? आंसू थे ही नहीं। कभी कभी आंखों से आंसू टपकते हैं और कभी कभी आंखों से पानी निकलता है। कह दो सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें बात समझाऊं। परेशान ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, हाँ परेशान ना हो जाओ। फिर यहाँ पे भी एक मुल्ला मुझे कहने लगा, तो जी फिर हुजूर ने क्यों कहा अबू बकर रो क्यों रहे हो? मैंने कहा हुजूर आलिमुल गैब थे कि रो रहा है या पानी टपक रहा है। हुजूर ने भी तो यही समझा कि शायद आंसू बह रहे हैं, लेकिन वो तो अबू बकर ने बतलाया, हुजूर कोई बात नहीं, वो काला आया था, उसने आके मुझे डसना शुरू कर दिया, शायद मैं आपको छोड़ के भाग जाऊंगा, लेकिन मैंने पाँव हटाना दूर की बात, मैंने पाँव हिलाया ही नहीं। ईमान से बताओ, अबू बकर ने पाँव हटाया? पाँव हिलाया? क्यों नहीं हिलाया? इसलिए कि अबू बकर को पता था कि झोली में तो नबुव्वत आराम कर रही है ना, अगर पाँव हिलाता हूं टांग हिलती है, टांग हिलती है आंख खुलती है। अबू बकर ताइया कर चुका था, जान जाती है तो जाए लेकिन मोहम्मद का आराम ना जाए। अब आप सियाने लोग बैठे हो, अकलमंद पुराने लोग बैठे हो, अगर किसी को सांप डसे एड़ी पर या पिंडली पर तो क्या करते हैं? कहते हैं यार कस के इसको कपड़ा बांधो, पट्टी बांधो ताकि जहर पूरे जिस्म में फैल ना जाए, आदमी मर ना जाए। हाँ, तो पट्टी बांध के उसके जहर को चूसा जाता है कि इसका जहर चूस लो ताकि जहर फैले ना। मुझे बताओ, अबू बकर ने कोई पट्टियां बांधी थी? अबू बकर ने पाँव हटाया था? अबू बकर ने पाँव हिलाया था? अबू बकर ने जहर चूसा था? तो मैं तुम्हें उसकी तमसील और थ्योरी बता रहा हूं कि अबू बकर की आंखों से पानी भी क्यों टपका था। इसलिए टपका था कि अबू बकर को जब काले ने डसा तो काले का जहर एड़ी से चला पिंडली में, पिंडली से चला रानों में, रानों से चला नाफ में, नाफ से चला पेट में, पेट से चला जिगर में, जिगर से चला हलक में, हलक से चला दिमाग में। जब पूरे जिस्म, बॉडी और खून में और सांप के जहर ने सर्कुलेट किया, घूमा और पूरे दिमाग तक असर गया, तो अबू बकर रोया नहीं। उस जहर को बर्दाश्त करने के असर की वजह से अबू बकर के आंखों से पानी टपक पड़ा। और वो भी तमसील दे के कहता हूं, आज अगर कोई आदमी दोपहर को सूरज की तरफ देखे, ईमान से बताओ रोता है या आंखों से पानी निकलता है? अगर किसी की आदमी आंखों में धुआं चला जाए, वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? अगर किसी को सर में दर्द या नज़ला जुकाम शदीद हो जाए तो वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? अगर किसी को बुखार की हरारत शदीद हो जाए तो वो रोता है या आंखों से पानी बहता है? और तो मतलब क्या निकला कि रोना और होता है, पानी का बहना और होता है। अबू बकर रोने वाला नहीं था, न रोया था, न रोने आया था, न उसने रो के दिखलाया था, वो तो रुलाने आया था। ये जुमला भी तुम्हें दो दूं कि वो तो रुलाने आया था और उसने ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया, ऐसा रुलाया, काफिर आज तक रो रहा है, क़यामत की 10 तारीख तक रोता रहेगा। अबू बकर रोने नहीं आया, अबू बकर रुलाने आया था। अब हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? तवज्जो रहे, बात को किनारे लगा रहा हूँ। अबू बकर क्या हुआ? अबू बकर ने बतलाया, हुजूर ऐसे वो काला आया, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने मुझे डसा, फिर वो भाग गया, मैं बैठा रहा। हुजूर ने फरमाया, अबू बकर पाँव इधर लाओ। हाँ, मैं तो क्या काम है, पाँव इधर लाओ। अब इसी मौके पे मैं पूरी तकरीर का खुलासा 1 मिनट में देने चला हूँ। हाँ, अबू बकर पाँव इधर लाओ। अबू बकर ने एड़ी आगे की, हुजूर ने अपने बाएं हाथ की हथेली पे अबू बकर की एड़ी को रखा, अपने दाएं हाथ की उंगली शहादत पे अपना लुआब दहन लगाया और लगा के अबू बकर की एड़ी पे मसला, अबू बकर की एड़ी पे मसला। और फिर पूछा, अबू बकर अब क्या हाल है? तो अबू बकर ने कहा, अल्लाह के नबी लगता है काले की मेहनत बर्बाद हो गई, काले की मेहनत बर्बाद हो गई। अब आओ डीजी खान वालों, यही पे अंदाजा कर लो अबू बकर की इज्जत और अजमत और तकद्दुस और नामूस और शराफत और अदालत और दयानत और सदाकत और नबी की मोहब्बत और अजमत का, कि ये लुआब तान जो कभी शेर खुदा अली मर्तजा की आंखों पे लगा था, वही लुआब अबू बकर की एड़ी पे लगा। एड़ी इब्तदा है, आंखें इंतहा है। जो मकाम अली की इंतहा को मिला, वो मकाम अबू बकर की इब्तदा को मिला। तो मैं क्यों ना कहूं, यही वजह है कि अबू बकर को खिलाफत भी इब्तदा में मिल गई, अली को खिलाफत भी इंतहा में मिल गई। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अबू बकर से और नबी के सारे सहाबा से
वक़्त नहीं है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करता। अल्लाह सच्चा प्यार नसीब फरमाए और अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पर भी चलने की तौफीक अता फरमाए। और चलने का तरीका क्या है कि मेरे कायद जमीयत मुफक्किर इस्लाम मुफक्किर इब्न मुफक्किर मौलाना फजलुर रहमान ने जो इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाया, वो नारा खिलाफत राशिदा के निज़ाम का नारा है या नहीं है? उस नारे का साथ देकर इस मुल्क में इस्लामी इनकलाब बर्पा करके अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान के हया और अली की शुजाअत वाला निजाम इस मुल्क में बर्पा करो। फिर हम देखेंगे कौन कमीना नबी की खत्म नबुव्वत पे डाका मारता है। फिर हम देखेंगे कौन चूड़ा नबी के साहबा पर तवर्रा करता है, कौन डकैटर मस्जिद मदरसे पर अटैक करके लाल मस्जिद की बच्चियों को शहीद करता है। आओ मुसलमानों, तुमने जमहूरियत देखी, रोटी कपड़ा मकान का नारा सुना, मुल्क संवारो कर्ज उतारो सुना, तुमने तहरीक इंसाफ के चक्करों को भी देख लिया। आओ एक मर्तबा इस्लाम, कुरान, अल्लाह की किताब के निशान को आसमा के देखो। तेरे मुल्क में बरकत भी होगी, अल्लाह की रहमत भी होगी और गरीबों को रोजगार भी मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह ये सारा इनकलाब इस्लामी इनकलाब के साथ आएगा। तुमने लोगों के नारे सुने, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया जालिमों ने। जब आए थे आटा 10 रुपए किलो था, गए हैं तो 40 रुपए किलो है। आए थे पेट्रोल 55 रुपए लीटर था, गए हैं तो 110 रुपए लीटर है। आए थे डीजल 40 रुपए लीटर था, गए हैं तो डीजल 115 रुपए लीटर है। ये जालिम जब आए थे डॉलर 60 रुपए का था, जब गए हैं तो डॉलर 100 रुपए का है। ये रोटी कपड़ा मकान दे के नहीं गए, रोटी कपड़ा मकान छीन के गए। आओ इस्लाम के निज़ाम की तरफ। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, बेदीन लादीन कुव्वतों को छोड़ो और वो बेचारा रंडवा मुतलका 70 साल बूढ़ा मॉडल जिसको अब यूथ याद आ गई। चक्कर देखो इनके चक्कर। जब तक खुद जवान था पता नहीं कहां परेशान था, अब 70 साल मॉडल बन गया। अब कहता है मुझे जवानों की बड़ी फिक्र है। हाँ, अब सोनामी गुमनामी बदनामी। ओए पागल, तुझे तो छोड़ के भाग गई तेरी जनानी। तू अपना घर बसा नहीं सका, मेरा मुल्क बसाएगा। जो अपनी बीवी को खुश नहीं कर सका पूरा मुल्क खुश रखेगा। जो अपना घर नहीं बचा सका वो तेरा मुल्क बचाएगा। नहीं, ये झूठे नारे हैं, इक्तदार की हवस है और कुछ नहीं। जब तक इनमें जवानी होती है ये हैवान रहते हैं और जब ये एक्सपायर रिटायर हो जाते हैं फिर इनको कौम की दर्द जाग पड़ती है कि आखिरी उम्र में भी हम मजे करते रहे। आओ हम अपनी क़यादत का किरदार पेश करते हैं कि उलमाए देवबंद ने जमीयत उलमा इस्लाम और मुख्तलिफ जमातों के प्लेटफार्म पर MPA, MNA, वजीर, मुशीर, गवर्नर, सेनेटर, मिनिस्टर, हत्ता के वजीर आला तक रहे। ईमान से बताओ कोई एक भी देवबंदी आलिम आज तक MPA, MNA, वजीर, मुशीर बन के 1 रुपए की बेईमानी करके जेल में गया? हम सिर्फ नारे नहीं लगाते, दावे नहीं करते, हम अपना रिकॉर्ड और तारीख पेश करते हैं कि आज तक हम बेदाग हैं। हमारे किरदार पर तुम्हें कोई धब्बा नजर नहीं आएगा। आओ आजमाए हुए को ना आजमाओ, एक दफा उलमा का साथ दो। इंशाअल्लाह तेरे मुल्क में जब अल्लाह का निज़ाम आया तो फिर ये झूठा निज़ाम दफन हो जाएगा। जिस निज़ाम में वडेरे और सरदार का मैट्रिक पास बेटा तहसीलदार बन जाता है, थानेदार बन जाता है और गरीब का BA पास बच्चा भी रेडी पे फ्रूट बेचता है, गरीब का MA पास बच्चा भी होटल में बहरा खड़ता है, ये निज़ाम कब तक अपने ऊपर मुसल्लत रखोगे? आओ मैं आखिर में उन्हीं वडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों से कहा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।